Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, today is our computer turn. So we shall read today computer in our today's class. And students, we were reading chapter first, computer devices, memory and storage. So students, in our last video, our topic were in this chapter first processing device and computer memory. So we have read processing devices and included this topic processing devices. We have read ALU, CU and MU. And after it we have also read computer memory, and we have read and note down question answer. We can say exercise of chapter first in our fair computer notebook in our last video. So students, all this work we have completed in our last video. And today's our class is very important because today we are going to read about memory chart. Today's our topic are memory chart, and included the first topic memory chart. We will read in our today's class primary memory and secondary memory, and included the primary memory we will read RAM and ROM, and after it our second topic is storage devices. Okay, so students, let's see. Firstly we are going to read memory chart. Okay, and after finishes both टॉपिक्स ओके जो हमने दोनों टॉपिक्स हमारे फिनिश हो जाएंगे. ओके, मेमोरी चार्ट और जो हमारे सेकंड टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस. आफ्टर इट वी शैल रीड एंड कंप्लीट एक्सरसाइज बी एंड सी ऑफ चैप्टर फर्स्ट in our fair computer notebook. Okay, in our today's class. So students, pay special attention in your class and listen to my words clearly because today's our class is very important. Okay, let's see memory chart. Memory. Students, memory is divided in two parts. जो memory है वो two parts में divided है. The first part is primary internal memory. जो first part है वो क्या है? Primary internal memory. And the second part of memory is secondary external memory. Second part क्या है? Secondary external memory. Students, we can say the second name of primary memory is internal memory. जो primary memory है ना, इसका second name क्या होता है? internal memory होता है. क्लियर? प्राइमरी मेमोरी मीन्स होता है प्राथमिक, मेमोरी मीन्स मेन सोर्स है. इट्स मीन आधार सामग्री या धारणा या स्मरण शक्ति. ओके, मेमोरी स्टूडेंट एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी चीज जिसमें कुछ हम स्टोर कर सके. ओके, कुछ संरक्षित कर सके, ऐसी कोई भी चीज होती है उसे बोलते हैं मेमोरी. एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी चीज जिसमें हम कुछ सेव कर सके, कुछ स्टोर कर सके, संरक्षित कर सके, उसे बोलते हैं मेमोरी. इसमें इट्स मीन होते हैं स्मरण शक्ति या धारणा. क्लियर? तो प्राइमरी मेमोरी में स्टूडेंट होते हैं प्राथमिक मेमोरी या प्राथमिक धारणा, और प्राइमरी मेमोरी का सेकंड नेम है वो है इंटरनल. ओके, इंटरनल मेमोरी इट्स मीन आंतरिक धारणा. एंड द सेकंड मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी इट्स मीन होता है माध्यमिक मेमोरी या माध्यमिक धारणा. एंड द सेकंड नेम ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल मेमोरी. और जो सेकेंडरी मेमोरी है हमारी माध्यमिक मेमोरी, इसका सेकंड नेम क्या होता है? एक्सटर्नल मेमोरी. इट्स मीन बाहरी धारणा. ओके, तो स्टूडेंट जैसे कोई भी अगर एक स्टूडेंट ऐसा होगा आप लोगों में से जिसके टू नेम्स होगा ना. जैसे आपका स्कूल का नेम कुछ और होगा, सपोज दैट आपके स्कूल का नाम सौर्य. ओके, तो आपका घर का नाम कुछ और होगा, घर का नेम आई थिंक आपका यस या कुछ भी होगा. तो ऐसे पर्सन होते हैं ना जिनके टू नेम्स होते हैं, मतलब स्कूल का या बाहर का नेम अलग होता है, घर का नेम अलग होता है. सेम प्रोसेस है यहाँ मेमोरी के साथ. ओके, मेमोरी जो है इसके भी टू नेम है. प्राइमरी मेमोरी है ना, तो उसका एक और नेम है इंटरनल मेमोरी. सिमिलर जो सेकेंडरी मेमोरी, इसका एक और नेम है एक्सटर्नल मेमोरी. क्लियर? तो स्टूडेंट, the memory is divided in two parts, primary memory and we can say the second name of primary memory is internal memory, and the second part of memory is secondary memory, and the second name of secondary memory is external memory. Okay, and you know what, the primary memory we can say the second name of primary memory is internal memory. Okay, तो primary memory और internal memory is divided in टू पार्ट्स. ओके, तो अब जो हमारी फर्स्ट नंबर जो मेमोरी का पार्ट है प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी जिसे बोल सकते हैं, ये भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड. ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज रैम, RAM रैम, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी इज रोम, ROM रोम. क्लियर? तो जो प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी जिसे बोल सकते हैं, ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट है रैम, सेकंड है रोम. ओके, लेट्स सी सेकंड पार्ट ऑफ मेमोरी. जो सेकेंडरी मेमोरी है स्टूडेंट्स, द सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी इज आल्सो डिवाइडेड इन थ्री पार्ट. ओके, जो एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी है ये भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड. ओके, प्राइमरी मेमोरी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है और सेकेंडरी मेमोरी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके, फर्स्ट पार्ट इज फ्लॉपी डिस्क, सेकेंड पार्ट इज हार्ड डिस्क एंड द थर्ड पार्ट इज CD या DVD. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, मेमोरी इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी and the secondary memory or external memory. Primary memory is divided in two parts, RAM and ROM, and secondary memory or external memory is divided in three parts, floppy disk, hard disk और CD या DVD. Clear? Okay.
Let's see, now we are going to read about primary memory. So let's see primary memory. The primary memory is kept on silicon chips and it fixed to the circuit board. It is also called internal memory. Primary memory is of two types. Okay, तो इससे जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, ये सिलिकॉन की चिप्स में रखी जाती है. सॉरी, चिप्स नहीं, चिप बोलते हैं. ओके, तो सिलिकॉन की जो चिप्स होती हैं, इट्स मीन चिप्स है, इट्स अ फ्लो फॉर्म ऑफ चिप. ओके, चिप का फ्लो फॉर्म है. तो सिलिकॉन की चिप्स में क्या रखी जाती है? प्राइमरी मेमोरी रखी जाती है. इट्स मीन प्राथमिक धारणा या प्राथमिक स्मरण शक्ति या प्राथमिक मेमोरी किसमें रखी जाती है? सिलिकॉन की चिप्स में. ओके, तो प्राइमरी मेमोरी को किसमें रखते हैं स्टूडेंट? सिलिकॉन चिप्स में. एंड इज फिक्स टू द सर्किट बोर्ड. ओके, और ये फिक्स्ड किसमें होती है? सर्किट बोर्ड में फिक्स होती है. प्राइमरी मेमोरी जो होती है सिलिकॉन चिप्स में रखी जाती है और ये सर्किट बोर्ड में फिक्स होती है. इट्स मीन कि सर्किट बोर्ड में एक सिलिकॉन की चिप्स फिक्स्ड होती है, उस पर अरेंज होती है और उस सिलिकॉन की चिप्स के अंदर क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है. क्या? इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी को हम और भी क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी. इट्स मीन आंतरिक मेमोरी, आंतरिक धारणा. प्राइमरी मेमोरी ऑफ टू टाइप. प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है. वी हैव रीड प्राइमरी मेमोरी, है ना. अभी जब मेमोरी चार्ट में मैंने डिस्क्राइब किया था ना, तो प्राइमरी मेमोरी इज टू टाइप. प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की होती है. द फर्स्ट टाइप इज रैम, आरएम रैम. ओके, तो प्राइमरी मेमोरी का फर्स्ट टाइप क्या है? रैम है. ओके, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम का क्या मतलब स्टूडेंट? द स्पेलिंग ऑफ रैम इज आरएम. आरएम है ना, तो डोंट कॉल इट, डोंट स्पीक इट राम. ओके, इसे राम मत रीड करिएगा. आरएम है तो मोस्टली हम लोग क्या रीड कर सकते हैं? राम रीड कर सकते हैं, क्योंकि राम की स्पेलिंग भी यही सेम होती है, आरएम, है ना. बट इट्स नॉट अ राम. ओके, इट्स अ रैम. ये क्या है? रैम. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड आरएम इज रैम. इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? रैम है, राम नहीं. ओके, तो रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो रैम का क्या मतलब है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. वी कैन टू से द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. बोल सकते हैं कि रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या ये भी बोल सकते हैं कि जो रैम है ना, तो इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. क्लियर? द इंफॉर्मेशन stored on this memory is erased when the computer is switched off. जो इंफॉर्मेशन में सूचना या जानकारी स्टोर्ड में संग्रहित की हुई, ओके, ऑन दिस मेमोरी, इस मेमोरी में, इस धारणा में, इज इरेज मीन्स इरेज हो जाती है, रफ हो जाती है, फिनिश हो जाती है. ओके, व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ. ओके, जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, इट्स मीन कंप्यूटर बंद हो जाता है. जैसे हमारा स्टूडेंट, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक थिंग्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स होती है, तो वो स्विच ऑफ हो जाती है ना, इट्स मीन बंद हो जाने. स्विच ऑफ मीन्स होता है बंद हो जाने. जैसे हमारा मोबाइल हो गया. ओके, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन दिस मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. इट्स मीन कि मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है ना, तो इसमें जो सूचना या जानकारी होती है वो क्या होती है? इरेज हो जाती है, रफ हो जाती है. क्या? तो द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन दिस मेमोरी, इस मेमोरी में जो भी जानकारी या सूचना स्टोर होती है, संग्रहित होती है, वो कंप्यूटर के बंद होने पर क्या हो जाती है? इरेज हो जाती है. इट्स मीन कि अगर आपने रैम में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है ना, कोई भी जानकारी या सूचना संग्रहित करके रखी है, तो जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा, जैसे ही कंप्यूटर आपका ऑफ होगा, बंद होगा, तो वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी या सूचना क्या हो जाएगी? इरेज हो जाएगी, रफ हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपने आप रफ हो जाएगी, अपने आप इरेज हो जाएगी. ओके, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा. अ कैलकुलेटर इज एन एग्जांपल ऑफ रैम. जो एक कैलकुलेटर होता है ना, वो रैम का एग्जांपल होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का एग्जांपल होता है. एक कैलकुलेटर इज एन एग्जांपल ऑफ रैम. तो रैम एक कैलकुलेटर जो होता है वो एग्जांपल होता है, एक कैलकुलेटर उदाहरण होता है रैम का. ओके, तो स्टूडेंट, कैलकुलेटर जो होता है ना, उसमें क्या होता है? द इंफॉर्मेशन एग्जिट टिल द कैलकुलेटर इज ऑन. ओके, तो जो इंफॉर्मेशन होती है, सूचना जानकारी होती है, वो क्या हो जाती है? एग्जिट टिल द कैलकुलेटर इज ऑन. वो तब तक ही एग्जिट मीन्स होता है मौजूद होना, टिल द कैलकुलेटर इज ऑन. वो कोई सूचना या जानकारी कैलकुलेटर में तब तक मौजूद रहती है जब तक कि कैलकुलेटर ऑन रहता है, चालू रहता है. एज सुन एज वी टर्न ऑफ द कैलकुलेटर, डाटा गेट्स एरेज्ड. जैसे ही कैलकुलेटर टर्न ऑफ करता है, बंद हो जाता है, डाटा क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है. स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर आपने कभी यूज़ किया? हैव यू एवर यूज कैलकुलेटर? आपने कभी कंप्यूटर को यूज़ किया? कैलकुलेटर को जब भी यूज़ करते हैं अपने, हमारी जो मोबाइल में कैलकुलेटर होता है या जो ओरिजिनल वाला कैलकुलेटर होता है, ओके, तो क्या होता है? कैलकुलेटर में हम कुछ भी वर्क करते हैं. ओके, सपोज दैट कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं, डिवाइड करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं ना, कुछ भी हम उस पर वर्क करें. ओके, तो जब हम कुछ वर्क करते हैं, सपोज दैट आपने 5 × 5 किया कैलकुलेटर में, तो 25 आया.
नेक्स्ट टाइम आपने 6 × 5 किया तो 30 आ गया। तो 25 जो आया था फर्स्ट टाइम पे आपका 5 × 5 करने पे, वो रफ नहीं होगा, वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है। कभी यूज़ करके देखना कैलकुलेटर का अपने फ़ोन पे, या जो अलग से कैलकुलेटर आता है उसको यूज़ करके देखना। आप जब भी उसका यूज़ करेंगे तो आपने जो भी वर्क किया होगा ना, तो वो रफ नहीं होता है, वो क्या होता है, स्टोर होता रहता है। ओके, वो तभी रफ होगा जब आप उसे डिलीट मारेंगे। ओके, लेकिन एक टाइम पे और भी वो रफ हो सकता है कि जब आप वर्क कर रहे हैं कैलकुलेटर पे। ओके, सपोज दैट आपने ध्यान नहीं दिया, कैलकुलेटर अगर आपका ऑफ हो गया, तो जितना आपका जो वर्क होगा ना, जितना आपने वर्क किया होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी, ओके, वो क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। तो जैसे ही कैलकुलेटर ऑफ होता है तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है, सूचना जानकारी होती है, वो क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है, ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती है। सेम वैसे ही रैम में होता है। रैम में अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, कंप्यूटर बंद होता है, तो जितना भी रैम के इंक्लूडेड जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो सारी रफ हो जाती है। क्लियर? तो कैलकुलेटर इज एन एग्जांपल ऑफ रैम। रैम का एक उदाहरण क्या है, कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर रैम का एक उदाहरण है। क्लियर? Now we are read about ROM. Okay, let's see ROM. ROM. ROM refers to read only memory that holds the inbuilt information. ROM किससे संदर्भित है, read only memory से संदर्भित है। ओके, that holds means जो रखता है, inbuilt means information. Inbuilt information means स्टूडेंट होता है कि अधूरी जानकारियों को, या जो पूरी जानकारी ना हो, जो जानकारी बनी ना हो, उन जानकारियों को, इन्फॉर्मेशन को रोम रखता है। ओके, इट कॉन्सिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स फेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू सिंपली द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटर। ओके, तो ये क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन को, निर्देशों को कंसिस्ट करता है। ओके, और प्रोग्राम को फीड करता है किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर टू सिंपली द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटर। एक कंप्यूटर ऑपरेटर के बहुत ही सिंपली मीन्स आसानी से किए गए कार्य के मैन्युफैक्चरर के द्वारा ये प्रोग्राम को फीड करता है और निर्देशों को, इंस्ट्रक्शन को कंसिस्ट करता है। क्या, we cannot record data on ROM, only read from it. Okay, तो हम क्या करते हैं, we cannot record data, हम डाटा को रिकॉर्ड नहीं कर सकते रोम में। ओके, इट्स मीन हम डाटा को रिकॉर्ड नहीं कर सकते रोम में। जैसे रैम में हम क्या करते हैं, डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर में कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा कैलकुलेटर हो गया या कंप्यूटर हो गया, जैसे ही ऑफ होता है तो क्या हो जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन इरेज हो जाती है। लेकिन रोम में हम कुछ टाइम के लिए भी इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिकॉर्ड डाटा ऑन रोम। तो हम रोम पे कोई भी डाटा, ओके, कोई भी मटेरियल सोर्स, कोई भी आधार सामग्री, कोई भी इंफॉर्मेशन क्या नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओनली रीड फ्रॉम इट, सिर्फ इससे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, सिर्फ हम रोम से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। रोम का नेम ही है रीड ओनली मेमोरी। इट्स मीन केवल पढ़ना। रीड ओनली मेमोरी, रीड मीन्स पढ़ना, ओनली मीन्स केवल, मेमोरी मीन्स मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इट्स मीन मेमोरी को सिर्फ पढ़ना। क्या, तो स्टूडेंट रैम में हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर हो या कैलकुलेटर हो, रैम का कोई भी एग्जांपल हो, अगर जैसे ही वो डिवाइस ऑफ होती है, स्विच ऑफ होती है, तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अपने आप रफ हो जाती है। ओके, रेज हो जाती है। लेकिन रोम में तो हम कुछ टाइम के लिए भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। वी ओनली एंड ओनली रीड फ्रॉम इट, हम सिर्फ इससे रीड कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट टुडेज अवर फर्स्ट टॉपिक प्राइमरी मेमोरी हैज फिनिश्ड। ओके, प्राइमरी मेमोरी फिनिश्ड हुआ है, तो हमारी मेमोरी चार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है। ओके, let's say secondary memory. The secondary memory is used to store data for a longer period of time. Okay, secondary memory का यूज किया जाता है एक समय के अधिक अंतराल के लिए डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को संग्रहित करने के लिए। इट्स मीन अगर आपको कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन या जानकारी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सेव करनी, स्टोर करनी है, तो आप सेकेंडरी मेमोरी में यूज कर सकते हैं। तो देखो हम लोग रैम में भी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही कोई हमारे डिवाइस, रैम का जो एग्जांपल का कोई डिवाइस है ऑफ होगा, तो वो डाटा इरेज हो जाएगा। ओके, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, अगर आप कोई डाटा, कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर करना चाहते हैं अधिक समय के लिए, एक समय के अधिक अंतराल के लिए उसे स्टोर करना चाहते हैं। ओके, मतलब बहुत टाइम के लिए आप स्टोर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उसे संरक्षित करना चाहते हैं, तो आप सेकेंडरी मेमोरी में कर सकते हैं। आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। तो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का सेकेंड नाम क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ब्राहा मेमोरी भी कहते हैं। क्या, इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज द प्राइमरी मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो इट इज़ रिक्वायर्ड मीन्स होती है आवश्यकता है। ओके, तो इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में सफिशिएंट स्टोर नहीं होता। इट्स मीन सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त। ओके, तो इसका यूज़, इसकी आवश्यकता सेकेंडरी मेमोरी की इसलिए होती है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, जिसे हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, तो इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती। इट्स मीन कि सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ इसलिए करती है, हमारे लिए इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन की एक बड़ी अमाउंट, इंफॉर्मेशन का एक लार्ज अमाउंट को स्टोर करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। हम एक बहुत ज़्यादा डाटा को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए प्राइमरी मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए रिक्वायर्ड होती है सेकेंडरी मेमोरी की। स्टूडेंट, our first topic memory chart has finished. We have read about memory, primary memory and secondary memory. Clear? And I hope you must have no problem in this topic, the memory chart, primary memory and secondary memory. Okay, so also turn your page forward, look at the next page. Now we are going to read our second topic. Okay, storage devices. Storage means होता है संग्रहित करना या संरक्षित करना. Okay, devices means उपकरण. Storage devices it's mean संग्रहित या संरक्षित करने वाले उपकरण. In everyday life we use many storage devices like almirah, cupboard, locker, etc. to store things. Okay, तो अपनी प्रत्येक दिन के जीवन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। ओके, जैसे कि अलमीरा हो गया, कबर्ड हो गया, लॉकर हो गया। अलमीरा में हम लोग क्या करते हैं, अपनी ड्रेसेस वगैरह अच्छे से रखते हैं ना, टाइडी करके। ओके, तो स्टोर ही हुआ ना एक प्रकार के। कबर्ड वगैरह में से हम अपनी बुक्स, ड्रेसेस वगैरह इंपॉर्टेंट थिंग्स टाइडी करके रखते हैं। तो हम लोग कबर्ड में, अलमीरा में और लॉकर में हम लोग जो इम्पॉर्टेंट हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह, मनी वगैरह या ज्वेलरी वगैरह अपने लॉकर में रखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अलमीरा में, कबर्ड में, लॉकर में अपनी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है उसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो हमारी ये जो थिंग्स है ना, अलमीरा, कबर्ड और लॉकर, ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस, क्योंकि इसमें हम स्टोर करते हैं। वैसे ही स्टूडेंट, to store things. Okay, in the same way a computer uses CDs, USB, flash drive, DVDs etc. for storage of data. तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम अलमीरा में, कबर्ड में, लॉकर में अपनी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है उसे स्टोर करके रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में उसी प्रकार से, इन द सेम वे में, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर जो होता है अपनी डाटा को स्टोर करने के लिए, अपनी डाटा में अपनी मटेरियल सोर्सेस, आधार सामग्री को स्टोर करने के लिए, उसे संग्रहित करने के लिए किसका यूज़ करता है, सीडीएस का, यूएसबी फ्लैश ड्राइव का और डीवीडीएस का। ओके, जैसे हमारे पास अलमीरा, कबर्ड, वो लॉकर होते हैं ना, वैसे कंप्यूटर के पास सीडीएस, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और डीवीडीएस होता है, जिसमें वो अपनी डाटा को स्टोर करता है। क्लियर? Some of the storage devices are, कुछ storage devices है, so look clearly, your first number storage device is USB flash drive. Okay, it's a USB flash drive. ये USB flash drive है. Okay, so let's read about USB flash drive. It's a small storage device. ये एक छोटी स्टोरेज डिवाइस है। इट्स मीन छोटी संग्रहण करने वाला उपकरण। इट्स मीन कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, डाटा वगैरह है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? स्टूडेंट, ये शेप में भी चूँकि बहुत ही स्मॉल है कंपेयर देन अदर डिवाइसेस, हमारे अदर डिवाइसेस की अपेक्षा ये स्मॉल है ना, जिसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है कि डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इट अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, एक छोटी स्टोरेज डिवाइस है, यूज टू कैरी डाटा और ट्रांसपोर्ट फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो इसका प्रयोग किया जाता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव का, कि डाटा को ले जाने के लिए और इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है तबादला करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है, ये छोटी एक स्मॉल स्टोरेज डिवाइस होती है और इसका प्रयोग किया जाता है डाटा को ले जाने के लिए या डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, so let's see second number storage device. Your second number storage device. Second number storage device is CD या DVD. Okay, let's see, read about CD and DVD. CD refers to compact discs oblique digital video discs and can store a lot of data. तो जो CD होती है स्टूडेंट, वो रिफर्स होती है, इसमें संदर्भित होती है कॉम्पैक्ट डिस्क से या डिजिटल वीडियो डिस्क से, एंड कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डाटा। इट्स मीन, और ये बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकती है, बहुत सारी डाटा को, बहुत सारी सोर्स मटेरियल को, आधार सामग्री को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। इट्स मीन संग्रहित कर सकती है। जैसे हमारी यूएसबी फ्लैश ड्राइव तक थी, बहुत ही स्मॉल स्टोरेज डिवाइस थी, है ना, तो बहुत ही इसमें कम डाटा जो होता था स्टोर होता था, और क्या करती थी
ये सिर्फ इसका वर्थ है यूएसबी फ्लैश का कि ये डाटा को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता था और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बट हियर वी टॉक अबाउट सीडी और डीवीडी। अभी हम सीडी और डीवीडी की बात कर रहे हैं, और सीडी और डीवीडी जो है वो डिजिटल वीडियो डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क पर बेस्ड है, उससे रिफर करती है। ओके और क्या करता है वीडियो ओके एंड कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डाटा, और ये बहुत सारा डाटा को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। ओके तो द फुल फॉर्म ऑफ सीडी इज कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी इज डिजिटल वीडियो डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। क्लियर? ओके let's see third storage device. Okay, your third number storage device is multimedia card. Okay, let's read about multimedia card. Okay, so this card is small in size and is available in different storage capacities. Okay, इसलिए जो multimedia card है ना, तो this card means ये card, it means है small means छोटा, okay, in size means आकार में, this card is small in size, तो ये कार्ड आकार में छोटा है, okay, एंड इज अवेलेबल और उपलब्ध है इन डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स हियर द मीन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी दैट स्टोर करने की योग्यता। ओके इट्स मीन संग्रहण की योग्यता कि कितना क्या स्टोर हो सकता है। ओके ये जो मल्टीमीडिया कार्ड होते हैं ना, मल्टीमीडिया कार्ड, ओके दिस कार्ड इज स्मॉल इन साइज एंड इज अवेलेबल इन डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज। इट्स मीन ये कार्ड आकार में छोटा होता है और ये भिन्न भिन्न प्रकार के स्टोरेज कैपेसिटीज को, और वी कैन से दैट संग्रहण की योग्यता को, ओके संग्रहण की योग्यता को उपलब्ध कराता है। ओके मतलब इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के संग्रहण की योग्यता उपलब्ध होती है। जैसे इंस्टेंट कोई भी हमारी स्टोरेज डिवाइस है वो क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है। ओके लेकिन जो मल्टीमीडिया कार्ड है ना, इसमें डिफरेंट टाइप के स्टोरेज कैपेसिटीज दी होती है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की संग्रह करने की योग्यता दी होती है। ओके जैसे लो भी होती है, ओके कम भी जो स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, ओके और मोड भी होती है, अधिक भी होती है। जैसे कि जैसे इट्स अ मल्टीमीडिया कार्ड, यह मल्टीमीडिया कार्ड है ना, अभी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी स्टूडेंट कितनी है, 128 MB है। ओके तो अभी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 128 MB, इट्स मीन 128 MB। तो इससे ज़्यादा कैपेसिटी की भी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 152 भी हो सकती है, और इससे लेस भी हो सकती है। ओके तो जैसा आप इसका यूज़ करना चाहिए, आपको जिस स्टोरेज कैपेसिटी का मल्टीमीडिया कार्ड चाहिए होता है वो क्या होता है, तो वो अवेलेबल होते हैं, वो उपलब्ध होते हैं। ओके तो मल्टीमीडिया कार्ड, दिस कार्ड इज स्मॉल इन साइज, ये कार्ड आकार में छोटा होता है एंड इज अवेलेबल इन डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज, और ये भिन्न भिन्न प्रकार के स्टोरेज की योग्यता या भिन्न भिन्न प्रकार के संग्रहण की योग्यता में उपलब्ध होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टोरेज डिवाइसेस, वी हैव रीड स्टोरेज डिवाइसेस, ओके and I hope you must have understood storage devices. First storage device is USB flash drive, second storage device is CD or DVD, and third storage device is multimedia card. Okay, let's see computer manners. Okay, computer manners, it means जो कंप्यूटर को यूज करने की तरीके। okay, let's see, keep your computer room neat and tidy, handle all the devices in a proper way to avoid their misuse. Okay, keep your computer room neat and tidy. neat means होता है स्वच्छ and tidy means होता है व्यवस्थित। अपने कंप्यूटर रूम को स्वच्छ और व्यवस्थित रखिए। जहाँ जिस रूम में आपका कंप्यूटर रखा होता है, ओके तो आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर रूम को हमेशा कैसा रखना चाहिए, नीट एंड टाइडी रखना चाहिए, स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। हैंडल ऑल द डिवाइसेस इन अ प्रॉपर वे, ओके टू अवॉइड दियर मिसयूज। तो हैंडल ऑल द डिवाइसेस इन अ प्रॉपर वे, इट्स मीन सभी डिवाइसेस को, सभी उपकरणों को बहुत ही प्रॉपर वे से, उचित तरीके से, ओके उचित तरीके से, उचित रास्ते से इसे क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। ओके अवॉइड दियर मिसयूज, और क्या करना चाहिए, इसकी मिसयूज से, इट्स मीन इसके गलत प्रयोग से बचना चाहिए, इसके गलत प्रयोग को अनदेखा करना चाहिए, हमें इसका कभी भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। ओके वी शुड नेवर मिसयूज ऑफ एनी डिवाइस। ओके हमें किसी भी डिवाइस का मिसयूज नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट, today's our topic has finished. We have read about memory card and storage devices and the type of storage devices in our today's class, and I hope you must have understood what topic. You have no problem. Memory chart, primary memory, secondary memory, okay, RAM, ROM, okay, and you have no problem in our second number topic,
storage devices, USB, flash drive, CD or DVD, a multimedia card. Okay, so students, I hope you must have understood all these. You have no problem in any topic, okay, in any word. So students, today's your classwork is that complete exercise B and C. Okay, but firstly we are going to read and solve exercise B and C. Okay, पहले read करेंगे, उसके बाद आपको complete करनी है. Let's see exercise B, multiple choice question. Okay, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टिक द राइट ऑप्शन. जो राइट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, सही विकल्प, उस पर टिक करना है, सही का निशान लगाना है. टिक मीन्स होता है सही का निशान. जो फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज माइक्रोफोन इज अ ब्लैंक डिवाइस. ओके, तो माइक्रोफोन एक उपकरण है. जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज सीपीयू, सेकेंड ऑप्शन इज एमयू, थर्ड ऑप्शन इज इनपुट एंड फोर्थ ऑप्शन इज आउटपुट. ओके, तो माइक्रोफोन स्टैंड कैसा डिवाइस है? तो स्टैंड वी हैव रीड दैट माइक्रोफोन इज अ इनपुट डिवाइस. जो माइक्रोफोन होता है वो इनपुट डिवाइस होता है ना. जब हमने कीबोर्ड ये सब रीड किए हुए थे तब हमने रीड किया था ना कि माइक्रोफोन कैसा डिवाइस था? इनपुट डिवाइस था. क्लियर? तो स्टूडेंट, क्योंकि सीपीयू तो है प्रोसेसिंग यूनिट है ना, तो हम लोग डिवाइस की बात कर रहे हैं. यहाँ तो सीपीयू तो होगा नहीं, एमयू मेमोरी यूनिट है, तो यहाँ ये डिवाइस की बात करते हैं, एमयू भी पॉसिबल नहीं है. ओके, तो माइक्रोफोन इज अ इनपुट डिवाइस. माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस. सो ऑल स्टूडेंट put tick on third number box and also write down input on the first number blank. Okay, and let's see second number question. Your second number question is plotter is an blank device. जो plotter है वो एक कैसा उपकरण है? input, output, RAM, ROM. Okay, these are our option. ये हमारे option है. Okay, input, output, RAM, ROM. तो students, plotter is an output device. So plotter वो हमारा output device है, because we have read about plotter and we know that जो plotter होता है ना वो क्या करता है? डाटा को कंप्यूटर में जो भी डाटा होता है ना उसको क्या करता है? उसे ग्राफ में चेंज कर देता है ना, कि it is a device that converts data from a computer into a graph usually on paper. तो ये डिवाइस क्या करती है कि डाटा को कंप्यूटर से ग्राफ में कन्वर्ट कर देती है और यूजली ऑन पेपर, सामान्यतः पेपर पर. क्लियर? तो प्लॉटर इज अ आउटपुट डिवाइस. क्लियर? तो स्टूडेंट्स पुट टिक ऑन द बी नंबर in the B number box and also write down here in the second number blank output or UT output. Okay, let's say third number question. Third number question is blank is that part of a computer where data is stored. Okay, तो कौन सा एक कंप्यूटर का पार्ट है जहाँ डाटा को स्टोर किया जाता है? ओके, जहाँ डाटा को संग्रहित किया जा सकता है. First option is keyboard, B option is mouse, C option is memory, D option is CPU. Okay, memory, mouse, keyboard, mouse, memory, and CPU. This student, we know that we always use keyboard for text on a computer, और है ना कि हम कंप्यूटर पे टेक्स्ट करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. ओके, डाटा को स्टोर करने के लिए कभी कीबोर्ड का यूज़ नहीं करते हैं. क्लियर? एंड माउस, वी यूज़ माउस फॉर पेंट अ पिक्चर और ड्राइंग करने के लिए हम लोग, और क्या करने के लिए, और किसी ऑप्शन को चूज़ करने के लिए और टेक्स्ट करने के लिए माउस का यूज़ करते हैं ना. तो ये भी डाटा को स्टोर नहीं करता. मेमोरी. ओके, memory is the correct answer. Okay, so students tick on the C number box and also write down memory on the third number blank. Then our sentence become memory is the part of a computer where data is stored. तो memory जो है वो एक कंप्यूटर का पार्ट है, कंप्यूटर का एक भाग है जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है, जहाँ पे डाटा को संरक्षित किया जाता है ना. वी हैव रीड अबाउट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. तो स्टूडेंट्स put tick on third number box and also write down memory in the third number blank. Okay, memory को क्या करेंगे? थर्ड नंबर जो ब्लैंक है उस पर राइट डाउन करेंगे. लेट्स सी फोर नंबर क्वेश्चन. फोर नंबर क्वेश्चन इज ब्लैंक MB मेक 1 गीगाबाइट. इसमें कितनी MB मिलके 1 गीगाबाइट बनाते हैं? ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज 1021, बी नंबर ऑप्शन इज 1022, सी नंबर ऑप्शन इज 1023, फोर नंबर ऑप्शन इज 1024. Okay, tell me the what's the correct option here. Yes, students, we have read about this and we know that 1024, which is a D number option, is right. Okay, 1024 MB make 1 gigabyte. Okay, 1024 MB make 1 gigabyte. So all students put it on D number box and also write down 1024 on the 4 number blank. Okay, clear? 4 number blank पे क्या करेंगे? 1024 write down करेंगे. तो students
I explain you all question of this exercise B, and I hope you must have understood this exercise B. You have no problem in any question. Okay, so let's see. Now we are going to solve exercise C. So look clearly. Fill in the blanks. रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए. Our helping words are, जो हमारे help words है, okay, जिनमें से हमें choose करना है और जिन words को correct words को use करना है अपने sentence के according, वो है RAM, primary, data, CPU. Okay, let's see first number sentence. So first number sentence is pen drive is a portable device used to store blank full stop. तो पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस है, एक पोर्टेबल उपकरण है, ओके, जिसका यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए. क्या स्टोर करने के लिए? डाटा स्टोर करने के लिए. ओके, अब रैम को तो स्टोर करेगा नहीं, क्योंकि रैम तो ऑलरेडी एक मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना. तो और रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, लेकिन स्टोर तो करेगा नहीं ना रैम को. और सिर्फ प्राइमरी इट्स नॉट करेक्ट. Data is a correct word for this first number sentence. Okay, तो pen drive is a portable device used to store data. Pen drive एक portable device है डाटा को स्टोर करने के लिए. क्लियर? इट्स मीन डाटा मीन्स मेन सोर्सेज, आधार सामग्री को स्टोर करने के लिए. तो ऑल स्टूडेंट राइट डाउन इन द फर्स्ट नंबर ब्लैंक डाटा, DATA डाटा. क्लियर? Look at the second number sentence. Your second number sentence is blank. Contains ALU, MU and CU. Okay. स्टूडेंट कौन सा ऐसा यूनिट होता है जो ALU, MU और CU को रखता है? ओके, तो RAM it's not, primary it's not, data we have already used this word. CPU it's a correct word for the second number sentence. So I'll student take out the CPU from the help box and put on the second number blank. Then our sentence become CPU contains ALU, MU and CU. CPU ALU, MU और CU को रखता है. Clear? So let's see third number sentence. Or third number sentence is a calculator is an example of. It's a really very simple question, and you remember that कि we have read this line, कि हम ये line को read कर चुके हैं. एक calculator is an example of एक calculator जो होता है ना, एक गणना करने वाला जो होता है ना calculator, वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो स्टूडेंट्स अ कैलकुलेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैम. रैम का एग्जाम्पल होते हैं ना कैलकुलेटर. आई डिस्क्राइब यू, मैं आपको ये डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि जो रैम होता है, कैलकुलेटर होता है, वो रैम का एग्जाम्पल होता है. क्योंकि जैसे हम लोग कैलकुलेटर में कोई भी वर्क करते हैं तो वो जो वर्क होता है ना, जो हमारी एक्टिविटी होती है ना, वो कैलकुलेटर ऑफ होने के बाद इरेज हो जाती है. ओके, वैसे ही रैम होता है, कोई भी इसमें एक्टिविटी हमारी होती है तो वो जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो वो जितना भी डाटा होता है ना वो इरेज हो जाता है. क्लियर? कैलकुलेटर इज एन एग्जांपल ऑफ रैम. सो ऑल स्टूडेंट राइट डाउन रैम ऑन द थर्ड नंबर सेंटेंस. RM रैम. ओके, देन अवर सेंटेंस बिकम अ कैलकुलेटर इज एन एग्जांपल ऑफ रैम. एक संगणक रैम का उदाहरण है. क्लियर? Let's see 4 number sentence. Your 4 number sentence is the blank memory is kept on silicon chips. Okay, तो student we have also read this line. Okay, हम ये line भी read कर चुके हैं. And the memory is kept on silicon chips. It mean कि जो memory होती है ना, तो इसको the memory is kept on silicon chip. It mean कि किस memory को हम लोग silicon chips में रखते हैं. Okay, ऐसी कौन सी memory है जिसे हम silicon chips में रखते हैं? तो student we can see that here a remaining word is primary. In this help box में जो primary है ना, वही हमारा remaining word बचा है. वैसे भी student we have read that the primary memory is kept on silicon chips, कि primary memory को हम लोग silicon chips में रखते हैं ना. So all student take out primary from the help box and put on the fifth number blank. Then our sentence become the primary memory is kept on silicon chips. Primary memory को हम लोग silicon के chips में रखते हैं. Okay, so student match your answer. Now we are going to explain all questions. Okay, let's see. Your first number question is microphone is a blank device. The correct answer is input. Second question is plotter is a blank device. The correct option is output. Your third number question is blank is that part of a computer where data is stored. The correct option is memory. Your fourth number question is blank and we make our gigabyte. The correct option is 1024. Your C number exercise is fill in the blank. Okay, your first number answer is data. Okay, pen drive is a portable device used to store data. Your second number option is your second number answer is CPU. Then your sentence becomes CPU contains ALU, MU and CU. Your third number answer is RAM. Then your sentence becomes a calculator is an example of RAM. Your fourth number correct answer is primary, and your sentence become the primary memory is kept on silicon chips. Clear? This student I will explain you all sentences, all question of this exercise B and C, and I hope you must have understood exercise B and C.
you have no problem in any question of these exercise B and C. Okay, and you have understood storage devices and a memory chart. Okay, so today's classwork is that complete exercise B and C. We can say that note down exercise B and C of chapter first in your Fair Computer notebook. It's a 2 days class. And your homework is that learn exercise B and C of chapter first from your Fair Computer notebook. It's a 2 days homework. क्या करना है क्लास वर्क के आपको एक्सरसाइज बी और सी नोट डाउन करनी है अपनी फेयर कंप्यूटर नोटबुक पे. ओके, तो अपनी फेयर कंप्यूटर नोटबुक पे अपनी ये एक्सरसाइज बी और सी कंप्लीट करनी है. आज आपका होमवर्क सॉरी क्लास वर्क है. आपका होमवर्क क्या है? अपनी फेयर कंप्यूटर नोटबुक से एक्सरसाइज बी और सी लर्न करनी है. आपका होमवर्क है. सो ऑल स्टूडेंट्स प्लीज कंप्लीट योर क्लास वर्क. Note down exercise B and C of chapter first in your Fair Computer notebook and send me your work here. Thank you.